Hello everyone, welcome to the lecture series of Theory of Computation. In this video we start with a new topic that's based on Turing machines. So let's begin. So let's first understand what is a Turing machine. So a Turing machine is another type of mathematical or a computational model of a computer which was created by Alan Turing. So what does Turing machine helps us to understand? It helps us to understand that what kind of problems can be solved by a computer, how algorithms work at the lowest level, and what it means for something to be computable. So if we relate it with a real life example, then you can think of that Turing machines as a very simple computer. Turing machines, they are a very simple computer that have following properties. First property, that they have an unlimited memory. So first we did the finite automata which has no memory. Then we came to the next mathematical model which was push down automata, in which we store whatever input string that we want to process in a input tape. Now we had third type of mathematical model, Turing machines, which have unlimited memory. Then second property that they have is they have a head that reads and writes symbols. So पुश डाउन ऑटोमेटा में जो भी हम इनपुट स्ट्रिंग को स्टोर करते थे वहां से हम सिर्फ रीड करते थे डेटा को, कुछ राइट नहीं करते थे. बट ट्यूरिंग मशीन गिव्स अस अ फैसिलिटी दैट वी कैन रीड ऑल्सो एंड राइट सिंबल्स ऑल्सो. एंड द थर्ड प्रॉपर्टी दैट दे हैव इज अ सेट ऑफ रूल्स that tell it what to do. So this third property can be linked with the finite automata, जहाँ पे हमारे पास क्या होता था, finite automata में set of transitions होती थी जिससे हमें पता चलता था कि अगर हम इस particular state पे और हमें ये particular symbol मिलता है तो हमें ये action लेना है. Similarly, Turing machines के केस में भी हमारे पास एक finite control होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें कब कौन सा action लेना है. Right? So Turing machine is another type of mathematical or a computational model. They are a computational model that performs computations by reading and writing on tape. So now Turing machine consists of it consists of a finite control, it consists of a tape, and it consists of a head that can be used for writing and reading data on that tape. Right? So tape can be thought of like this. It consists of like this, with the leftmost symbol of the tape always like this, and there are certain input string that I want to read from this tape. Right? So this is my tape. Then I have a finite control which is represented like this box, and here I have a set of states. Just like in finite automata we have some set of states, similarly in Turing machine, in this particular Turing machine I have set of states, let's say Q0, Q1, Q2, Q3 and H. H denotes my halting state. So if I place our arrow like this, इसका क्या मतलब है कि currently हम Q1 state पे हैं और हमारे पास एक read write head होता है जो currently किस symbol को point कर रहा है from the input tape A को. So this is my read write head. So ये हमारी tape है. This is my read write head and this is my finite control जिसमें currently हम Q1 state पे है और हमारा read write head की position क्या है, that it is pointing symbol A which is the second symbol of my input tape. So now communication between the tape and the finite control is done with the help of this read write head. Right? So this read write head can be used to read symbols from the tape, and it is also used to change symbols or write symbols on the tape. Now this input tape that we have, this input tape has a left end, right? But it extends indefinitely to the right. So input tape में हमारा एक left hand symbol होता है जो denote कर रहा है कि tape यहाँ से start हो रही है, but it can move indefinitely to the right, right? जैसे हमारा stack में क्या होता था, downward grow करता था और indefinitely इतने blanks होते थे. Similarly ये जो आपकी input tape है ये right में grow करती रहेगी और indefinitely to the right जिसकी कोई end नहीं है. So once the input string is
ends, then it consists of only the blank symbols, जैसे हमारे स्टैक में होता था. So now जो लेफ्ट मोस्ट एंड होता है इनपुट टेप का, it is always marked with this special symbol which is this. So this triangular symbol is denoting that this is the left end of the tape, that is the tape is starting from this particular position. Now Turing machines are so designed that whenever the head reads this symbol, this starting symbol, it immediately moves to the right. So Turing machines को हमने डिजाइन इस तरीके से किया है कि जब जब उसको ये सिंबल एनकाउंटर होगा वो ऑटोमेटिकली राइट पे मूव करना स्टार्ट कर देगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी ट्यूरिंग मशीन्स की होती है कि यहाँ पे हम सिंबल ये वाला और एक ये वाला डिनोट करते हैं. इस सिंबल का मतलब है कि टेप में राइट की तरफ मूव करते जाओ, इस सिंबल का मतलब है कि इनपुट टेप में लेफ्ट की तरफ मूव करते जाओ, राइट. सो बेसिकली हम मूवमेंट डिनोट करते हैं ऑफ दिस रीड राइट हेड टू द लेफ्ट और राइट बाय दीज टू सिंबल्स. देन इन द इनपुट टेप द ब्लैंक्स आर डिनोटेड बाय दिस सिंबल. अगर मेरे पास इनपुट टेप है जिसमें मेरी स्ट्रिंग है AABA, इसके बाद मेरे पास सारे ब्लैंक्स हैं हमारी इनपुट टेप में, तो उनको हम डिनोट कर रहे हैं बाय दिस, राइट. Now another property that this Turing machine can move its head only one square at a time. एक बार में हम सिर्फ एक ही स्क्वायर पे मूव कर सकते हैं, right? Either you go left or you go right. So if I have to define a Turing machine, I can define it like this. That any Turing machine is a quintuple, just like we saw quintuple in the case of a finite automata, which consists of these five things: K, alphabet symbol, transition, S and H. Now this K is denoting the set of finite set of states. Finite set of states. जैसे finite automata के केस में हम Q denote करते थे to denote the finite set of states. Similarly in case of Turing machine we are using K to denote the finite set of states. Then alphabet symbol जो denote कर रहा है alphabet. Now this alphabet symbol is containing the blank symbol also, containing blank symbol. Blank symbol is this. It is also containing left hand symbol. Left hand symbol of the tape is this one. So this alphabet, it is containing the blank symbol also. It is containing the left hand symbol also, but it does not contain this and this symbol. So these, besides these two symbols, एवरी अदर सिंबल, वेदर द जो भी आपके सिंबल्स आपकी स्ट्रिंग के होंगे, चाहे AABA या फिर बाइनरी स्ट्रिंग है 0 1, तो वो सारे सिंबल्स तो आपके अल्फाबेट का पार्ट होंगे ही होंगे. उसके साथ साथ और क्या पार्ट होगा, आपका ब्लैंक सिंबल भी आपका अल्फाबेट का पार्ट होगा, और ये जो लेफ्ट हैंड मार्कर है इनपुट टेप का, ये भी आपका पार्ट होगा अल्फाबेट का. बट ये जो सिंबल्स हैं जो डिनोट करते हैं हेड की मूवमेंट लेफ्ट और राइट, ये दोनों सिंबल्स आपके अल्फाबेट का पार्ट नहीं होते हैं. द थर्ड इज दी this is a transition function. Then I have S which belongs to K is the initial state. S is denoting my initial state, and the last symbol which is H denotes the set of halting states. So initial state मेरी एक ही होगी, और जो मेरी सेट ऑफ हॉल्टिंग स्टेट्स हैं वो एक से ज्यादा भी हो सकती हैं. तभी हम इसको डिनोट कर रहे हैं दैट दिस हॉल्टिंग स्टेट इज अ सबसेट which can be equal to the total number of states also. So is the set of halting states. So let's recall them. K, set of finite set of states, alphabet symbol containing all symbols including blank and left hand marker but not this and this. Then transition function, then S which is the set of initial state, not set, only initial state, and H which is the set of halting states. Now let's take one example of a Turing machine to understand this better. So consider the Turing machine M, which is consisting of K, alphabet, transition function, S, and H which is the set of halting states, where K is Q0, Q1 and H. So basically I have three states in my Turing machine M. Alphabet symbol is
A blank and the left hand marker. Then S, which is my initial state, is Q naught. Q naught is my initial state. Then I have H. H is my halting state. So this is my initial state, this is my halting state, and Q1 is some other state. And I have a transition function given to me. So transition function basically tells you the set of rules, right? कि अगर ये सिंबल मिले तो हमें क्या एक्शन लेना है, ये सिंबल मिले तो हमें क्या एक्शन लेना है. तो हमें ट्रांजिशन फंक्शन भी इस ट्यूरिंग मशीन के लिए गिवन है, विच इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ दिस टेबल. अगर हम कोई पर्टिकुलर स्टेट क्यू पे है और हमें ये सिग्मा डिनोट कर रहा है कि हमें क्या सिंबल मिलता है उस पे, तो हमें उसके लिए क्या एक्शन लेना है ये हमें बता रही है ये ट्रांजिशन फंक्शन, राइट. सो सबसे पहले अगर हम क्यू नॉट स्टेट पे हैं और मुझे सिंबल ए मिला तो हमें क्या एक्शन लेना है, हम Q1 पे चले जाएं और जो भी सिंबल है आपका उसको रिप्लेस कर दो ब्लैंक से. तो इस ट्रांजिशन फंक्शन का क्या मतलब है, अगर आप Q नॉट स्टेट पे हो और आपको A मिलता है तो आपको क्या करना है, आपको Q1 पे चले जाना है और A को रिप्लेस कर देना है विद अ ब्लैंक. दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ट्रांजिशन फंक्शन. जैसे हम फाइनाइट ऑटोमेटा में करते थे कि अगर आप 1 स्टेट पे हो आपको A मिला तो आप 2 पे चले जाओ, आप 2 स्टेट पे हो आपको B मिला तो आप 2 पे ही रहो. लाइक दिस सिमिलरली ट्यूरिंग मशीन के केस में भी ये हमारे क्या है, ट्रांजिशन फंक्शन जो हमें बता रहे हैं कि हमें किस स्टेट पे हमें क्या सिंबल मिलता है तो हमें क्या एक्शन लेना है. देन Q नॉट पे अगर हमें और मुझे अगर ब्लैंक सिंबल मिल जाता है तो हम हॉल्ट कर जाएंगे और जो आपका ब्लैंक है वो ब्लैंक ही रहेगा, हमें कुछ रिप्लेस नहीं करना है. दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड. द थर्ड एक्शन सेज अगर हम Q नॉट पे हैं और अगर मुझे ब्लैंक मिलता है और अगर मुझे लेफ्ट हैंड मार्कर मिलता है तो हम Q नॉट पे ही रहेंगे और हम उसको और हम लेफ्ट हैंड में मूव कर जाएंगे. सो बेसिकली हम डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या करते थे, हर एक स्टेट के लिए जितने भी सिंबल्स होते थे आपके इनपुट अल्फाबेट के लिए सबके लिए बनाते थे. तो अब हमारे पास 3 सिंबल्स हैं, ए, ब्लैंक एंड द लेफ्ट हैंड मार्कर. तो हमने Q नॉट स्टेट के लिए तीनों के लिए ट्रांजिशन दिखा दिया, ए के लिए भी, ब्लैंक के लिए भी एंड लेफ्ट हैंड मार्कर के लिए भी. नाउ कमिंग फॉर द स्टेट Q1. Q1 के लिए देखते हैं, अगर हम Q1 पे हैं मुझे ए मिला तो हमें क्या करना है, हमें Q नॉट पे चले जाना है और ए को रहने देना है ए ही. देन अगर हम Q1 पे हैं मुझे ब्लैंक मिलता है तो हम Q नॉट पे चले जाएंगे और हम लेफ्ट हैंड में, हम राइट हैंड में मूव कर जाएंगे. सो दिस इज नॉट लेफ्ट हैंड, दिस इज राइट हैंड. Here also we'll move towards the right, here also we'll move towards the right. And the last transition function that is given is कि अगर हम Q1 पे है और मुझे लेफ्ट हैंड मार्कर मिलता है तो हम Q1 पे चले जाएंगे और हम राइट हैंड में मूव कर जाएंगे. सो ये हमें ट्रांजिशन फंक्शन गिवन है, राइट. तो इसमें हम देखते हैं कि हमें कब स्टॉप करना है, जब आप Q नॉट पे हो और आपको ब्लैंक मिलता है तो अब आप उस केस में क्या कर जाओगे, आप होल्ड कर जाओगे, राइट. तो इस ट्यूरिंग मशीन से अगर हम देखें इससे हमें क्या पता लग रहा है. सो लेट्स ट्राई टू एनालाइज दिस ट्यूरिंग मशीन. हमें ये जो ट्रांजिशन फंक्शंस गिवन है यहाँ पे, इससे हमें क्या पता लग रहा है. सबसे पहले अगर हम Q नॉट पे हैं, Q नॉट स्टेट पे आपको A मिला तो आप A को रिप्लेस कर दो ब्लैंक से. तो लेट्स से हम कोई रैंडम एग्जांपल लेके चलते हैं. सपोज मैंने एग्जांपल लिया, लेट्स सपोज अगर मैंने एग्जांपल लिया लाइक दिस, ये मेरी इनपुट टेप है, ए ए ए ए एंड देन ब्लैंक. सो दिस इज द स्टेटस ऑफ माय इनपुट टेप. तो सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं, हम Q नॉट स्टेट पे हैं. Q नॉट स्टेट पे अगर आपको A मिला, सबसे पहले हम इनपुट टेप को यहां से प्रोसेस करना स्टार्ट करेंगे, राइट. तो इनपुट सबसे पहले Q नॉट स्टेट पे अगर हम हैं और हमें ब्लैंक में और हमें ये लेफ्ट हैंड मार्कर मिलता है तो हमें क्या एक्शन लेना है, यहाँ पे देखते हैं. Q नॉट पे अगर हो आप और आपको ये वाला लेफ्ट हैंड मार्कर मिलता है तो आप Q नॉट पे रहोगे और आप लेफ्ट राइट में मूव कर जाओगे. तो हम राइट में मूव करके रीड राइट हेड पॉइंट कर रहे हैं इसको. अभी भी हम किस पे हैं, हम Q नॉट स्टेट पे ही हैं, क्योंकि Q नॉट पे जब लेफ्ट हैंड मार्कर हमें मिला तो हम स्टेट Q नॉट पे ही रहे. तो हम स्टेट Q नॉट पे ही हैं, ये फाइनाइट कंट्रोल है, हम स्टेट Q नॉट पे ही हैं. अभी Q नॉट पे अब कौन सा सिंबल मिला मुझे, A. तो हमें क्या कर देना है, आप Q1 पे चले जाओ और A को रिप्लेस कर दो ब्लैंक से. तो हम Q1 पे चले गए, इस A को मैंने रिप्लेस कर दिया ब्लैंक से. देन
Q1 पे ही हमें Q1 पे अब मेरा करंट रीडायरेक्ट किसको पॉइंट कर रहा है, ब्लैंक को पॉइंट कर रहा है। तो Q1 पे अगर ब्लैंक मिलता है तो हमें क्या करना है, Q0 पे चले जाओ और राइट में मूव कर जाओ। तो हम Q0 पे आ गए, राइट पे मूव कर गए, अब सिंबल पॉइंट कर रहे हैं इसको। Q0 पे अगर A मिलता है तो हमें क्या करना है, Q1 पे चले जाओ, इस Q1 पे आ गए, A को रिप्लेस कर दो ब्लैंक से। Q1 पे ब्लैंक मिला, Q0 पे चले जाओ, राइट में मूव कर जाओ, फिर से Q0 पे आ गए, हम राइट में मूव करें, इस A पे आ गए। Q0 पे A मिला, Q1 पे चले जाओ, A को रिप्लेस कर दो ब्लैंक से, हम Q1 पे आ गए, Q1 पे ब्लैंक मिला, Q0 पे चले जाओ, Q1 Q0 पे चले गए और हम नेक्स्ट सिंबल पे आ गए, रीड राइट हेड पॉइंट कर रहा है अब इसको। Q0 पे A मिला, Q1 पे चले जाओ एंड A को रिप्लेस कर दो ब्लैंक से। Q1 पे हम करेंटली, Q1 पे ब्लैंक मिला तो Q0 पे चले जाओ और राइट में मूव कर जाओ, राइट पे आ गए हम इस वाले सिंबल पे। Q0 पे अगर आपको ब्लैंक मिलता है तो हॉल्ट कर जाओ। तो Q0 पे हमें ब्लैंक मिल गया तो हम क्या कर गए, हम हॉल्ट कर गए, ट्यूरिंग मशीन हमारी हॉल्ट कर गई। तो अगर इस ट्यूरिंग मशीन से हम देखें तो हम क्या कर रहे हैं, इस ट्यूरिंग मशीन से हम जितने भी एज हैं हमारे इनपुट टेप पे उन सबको रिप्लेस कर रहे हैं, किससे, ब्लैंक से, right? So this Turing machine is basically replacing all the A's of your input tape with a blank symbol. तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम Q0 पे हमने स्टार्ट किया, हमने Q0 स्टेट से स्टार्ट किया, Q0 से हम राइट में गए, हमें A मिला तो हमने उसे ब्लैंक से रिप्लेस कर दिया, फिर राइट में गए, A मिला, हम फिर से उसे ब्लैंक से रिप्लेस कर दिया। वी कीप ऑन डूइंग दिस अंटिल एंड अनलेस हमें Q0 स्टेट पे कोई ब्लैंक नहीं मिल जाता और उस स्टेट पे हम क्या कर रहे हैं, हम हॉल्ट कर जाते हैं, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे क्या कर रही है ट्यूरिंग मशीन, इट विल कीप ऑन मूविंग बैक एंड फोर्थ बिटवीन टू स्टेट्स, Q0 पे Q1 पे, इन्हीं के दोनों के बीच में ये कंटिन्यूस मूव करती रहेगी और जब जब इसे A मिलता जाएगा उसको ब्लैंक से रिप्लेस कर जाएगी। फाइनली जब सारे ब्लैंक से रिप्लेस हो जाएंगे तब उससे कोई ब्लैंक एनकाउंटर होता है, दैट मीन्स इनपुट स्ट्रिंग हैज एंडेड, उस स्टेट पे हम क्या कर जाएंगे, हम हॉल्ट कर जाएंगे। So this is how we work with a Turing machine and this is how we process any input string that is given on a tape. Let's take another example. Suppose अगर हमें कोई Turing machine given है as K, alphabet symbol, transition function, set, initial state and the set of halting state, जहाँ पे K हमारी set states है, दो ही states है Q0 and H, then alphabet symbol is A, blank and left hand marker, then S is the Q0 and H is the halting state. हमें transition function given है like this, Q and हमें क्या action लेना है like this, Q0 है, Q0 पे अगर A मिला तो हमें क्या करना है, हमें Q0 पे ही रहना है बट अब हमें लेफ्ट में मूव करना है। अगर Q0 पे आपको ब्लैंक मिलता है तो हमें क्या करना है, हमें होल्ड कर जाना है और ब्लैंक को ब्लैंक ही रहने देना है। एंड अगर Q0 पे हमें लेफ्ट हैंड मार्कर मिलता है तो हमें क्या करना है, Q0 को राइट में मूव कर देना है। सो बेसिकली सपोज हम कोई रैंडम स्ट्रिंग लेते हैं ऑन आवर इनपुट टेप एंड देन प्रोसेस करके देखते हैं कि ये ट्यूरिंग मशीन कैसे काम कर रही है। लेफ्ट हैंड मार्कर, सपोज मैंने लिया दिस एज माई इनपुट स्ट्रिंग ऑन द इनपुट टेप। सबसे पहले हमने Q0 पे, हमारी स्टार्टिंग स्टेट है Q0 इनिशियल स्टेट, Q0 है, हम इस सिंबल पे हैं। Q0 पे हमें लेफ्ट हैंड मार्कर मिला तो Q0 पे ही रहे हम और हम राइट में मूव कर गए, इनपुट रीड राइट हेड पॉइंट कर रहा है अब इस A को। Q0 पे हम, Q0 पे अगर मुझे A मिला तो हम क्या कर रहे हैं, हम Q0 पे ही रहे बट हम फिर से राइट में मूव कर गए, तो हम इस सिंबल पे आ गए वापस से, रीड राइट हेड इज पॉइंटिंग टू दिस। देन Q0 पे हमें लेफ्ट हैंड मार्कर मिला, हम फिर से Q0 पे ही रहे, राइट में मूव कर गए, रीड राइट हेड यहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं। Q0 पे A है, हम फिर से मूव कर गए इस पे। तो हम क्या करे जा रहे हैं, हम बेसिकली बार बार बैक एंड फोर्थ मूव करते जा रहे हैं, राइट। अगर हमारी इनपुट स्ट्रिंग में सिर्फ A's हैं तो हम बार बार बैक एंड फोर्थ मूव करे जा रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टिल दिस एंड देन अगेन बैक टू दी सेम स्टार्टिंग पोजिशन। तो ये तो हो गया जब मैंने ये वाली इनपुट स्ट्रिंग ली। सपोज अगर मैंने इनपुट टेप में अगर इस टाइप की कोई स्ट्रिंग ली है लाइक दिस, तो अब क्या हो रहा है, हम Q0 स्टेट पे हैं,
हमने ये वाला सिंबल देखा, हम क्यू नॉट पे ही रहे और हम राइट में मूव कर गए, हम इस सिंबल पे आ गए। क्यू नॉट पे हमें ब्लैंक मिला तो हम क्या कर गए, हम होल्ड कर जाएंगे। क्यू नॉट पे ब्लैंक मिलते ही हमें क्या करना है, होल्ड करना है। तो बेसिकली ये मशीन क्या कर रही है, दिस मशीन scans to the left until it finds a blank and then it holds। तो ये ट्यूरिंग मशीन राइट में लेफ्ट में क्या करेगी, आपके स्कैन करती रहेगी जब तक इसे कोई ब्लैंक नहीं मिल जाता। जैसे ही इसको कोई ब्लैंक मिलेगा तो ये क्या करेगी, होल्ड कर जाएगी। तो अगर इसको कोई ब्लैंक मिलता ही नहीं है तो इनडेफिनेटली ये बैक एंड फोर्थ मूव करती रहेगी बिटवीन द लेफ्ट हैंड मार्कर एंड द स्क्वायर टू इट्स राइट। सो बेसिकली इस टाइप की स्ट्रिंग के केस में अगर इसमें कोई ब्लैंक इसको मिलता नहीं है, मतलब इनपुट टेप में आपकी जो स्ट्रिंग है उसमें सपोज इस टाइप की स्ट्रिंग है, तो इसमें क्या होगा, इस टाइप की ट्यूरिंग मशीन का कभी स्टॉप ऑपरेशन स्टॉप ही नहीं होगा। इट इज अ नेवर एंडिंग ऑपरेशन। इट विल कीप ऑन मूविंग बैक एंड फोर्थ बिटवीन टिल हेयर टू हेयर देन हेयर टू हेयर, राइट। तो इसको स्टॉप करवाने के लिए जब तक इसको स्टार्टिंग में कोई ब्लैंक नहीं मिलता तब तक ये हॉल्ट नहीं करेगी। इसके अलावा इसको कोई स्ट्रिंग मिल रही है देन इट विल द ऑपरेशन विल कीप ऑन गोइंग इनडेफिनेटली। सो अब अगर हम तीनों को कंपैरिजन करें, हमने 3 टाइप की मशीन्स देख ली, 3 टाइप ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स देख लिए। एक हमने देखा था फाइनाइट ऑटोमेटा, देन हमने देखा एक पुश डाउन ऑटोमेटा एंड देन हमने देखा ये ट्यूरिंग मशीन्स, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास जो मशीन्स आई थी वो आई थी फाइनाइट स्टेट मशीन्स, और वी कैन कॉल देम फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा को किस टाइप की लैंग्वेजेस एक्सेप्ट करती थी, रेगुलर लैंग्वेज। तो हर एक लैंग्वेज के लिए जिसके लिए हम फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं वो आपकी क्या है, रेगुलर लैंग्वेज है। देन हमारे पास एक वाइडर क्लास ऑफ लैंग्वेजेस आई जिनको हमने कहा कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। तो हर एक रेगुलर लैंग्वेज तो आपकी कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगी, साथ ही साथ हमारे पास कुछ नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस भी थी जो भी आपकी कंटेक्स्ट फ्री थी। तो कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को हमने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए जो मॉडल यूज किया था दैट वाज पीडीए व्हिच वाज अ पुश डाउन ऑटोमेटा। नाउ अनदर वाइडर सेट which encloses both the push down automata and finite automata are the Turing machines, and all those languages for which जिसके लिए हम ट्यूरिंग मशीन बना सकते हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं, हमारी रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेजेस। तो रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेजेस को और रिकर्सिव लैंग्वेजेस को थोड़ा डिटेल में हम बाद में देखेंगे। सो बेसिकली जो हमारी फाइनाइट स्टेट मशीन्स थी, फाइनाइट ऑटोमेटा, इसमें हमारे पास कोई भी इनपुट स्ट्रिंग होती थी और इनकी जो पावर होती थी वो सबसे लिमिटेड होती थी। देन इससे ऊपर पावर किया है हमारे पास पुश डाउन ऑटोमेटा, जहां पे हमारे पास पुश डाउन स्टैक भी होता था और एक हमारे पास टेप भी होती थी जिसपे हम अपनी इनपुट स्ट्रिंग को स्टोर करते थे। तो इट वाज स्लाइटली पावरफुल दैन दी फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन। अब हमारे पास है ट्यूरिंग मशीन्स जिसमें हमारे पास आपके पास रीड राइट हेड भी है, जिसपे आपके पास इनपुट टेप भी है, जिसपे आप रीड भी कर सकते हो, जिसपे आप राइट भी कर सकते हो, जो जिसकी पावर इन दोनों मशीन्स की पावर से कई गुना ज्यादा है, राइट। सो दीज आर आर ट्यूरिंग मशीन्स। Now coming to the next part in Turing machine, which is finding the configuration of a Turing machine. Configuration of Turing machine. So basically what do we mean by configuration of Turing machine? Configuration of a Turing machine means to specify the status of Turing machine. We specify the state, we specify the contents of tape, and we specify the position, right? तो किसी भी ट्यूरिंग मशीन की कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या स्पेसिफाई करते हैं कि उस करेंटली वो ट्यूरिंग मशीन कौन सी स्टेट पे है, टेप के कंटेंट्स क्या है और करेंटली रीड राइट हेड की क्या पोजीशन है, राइट। तो इसको एग्जांपल से देखते हैं। सपोज अगर हमारे पास कुछ इस टाइप का ट्यूरिंग मशीन गिवन है जिसमें आपकी इनपुट टेप का स्टेटस है ये ए बी ए एंड देन आई हैव सम ब्लैंक्स, देन आई हैव दिस फाइनाइट कंट्रोल जिसमें हमारे पास स्टेट्स है क्यू डैश सम क्यू एन स्टेट एंड द होल्टिंग स्टेट। करेंटली हम पॉइंट कर रहे हैं क्यू स्टेट पे, दैट मीन्स करेंटली हम क्यू स्टेट पे हैं और रीड राइट हेड पॉइंट कर रहे हैं इस पोजिशन पे, राइट। सो बेसिकली ये क्या है, एक फाइनाइट लेंथ स्ट्रिंग है जिसके बाद सारे हमारे पास ब्लैंक है। तो इस ट्यूरिंग मशीन की कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे बताएंगे, हम सबसे पहले बताते हैं कि वो कौन सी स्टेट पे है।
तो कौन सी स्टेट पे है वो है स्टेट क्यू पे, तो उसको सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पे। देन जो भी आपके टेप है उसके आप सिंबल्स को एज इट इज लिख दोगे। तो टेप के सिंबल्स क्या है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड मार्कर, देन ए, देन बी, ए। अगर आप एंड में जितने भी ब्लैंक्स होते हैं उनको हम कॉन्फ़िगरेशन में नहीं लिखते हैं अनलेस एंड अनटिल आपके रीड राइट हेड आपके ब्लैंक को ही पॉइंट कर रहा हो। तो अगर रीड राइट हेड की पोजीशन इस ए को ना पॉइंट करके इस ब्लैंक को होती तो हम इस ब्लैंक को लिखते हैं, अगर ऐसा नहीं है तो हम ब्लैंक को नहीं लिखेंगे। So read write head is currently pointing to this A. अब read write head किस को पॉइंट कर रहा है, A को पॉइंट कर रहा है, तो इसको हम अंडरलाइन कर देंगे। तो दिस इज डिनोटिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस ट्यूरिंग मशीन। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम स्टेट बता रहे हैं अलोंग विद कि टेप के कंटेंट्स क्या है, अलोंग विद रीड राइट हेड की पोजीशन क्या है। दिस इज हाउ वी स्पेसिफाई द कॉन्फ़िगरेशन। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सपोज अगर मैंने पास टेप के कंटेंट्स हैं लाइक दिस, and I have this finite control. So it is currently pointing to this halting state और read write head point कर रहा है इस symbol को। Now if I have to write the configuration तो हम कैसे लिखेंगे, किस state को point कर रहा है, halt state को। Then tape के contents क्या है, left hand marker, then 4 blanks and then I have a A. ए के बाद मेरे पास जितने ब्लैंक्स हम उनको नहीं स्पेसिफाई करेंगे और रीड राइट हेड की पोजीशन क्या है, इट्स पॉइंटिंग ऑन द थर्ड ब्लैंक, तो हम इसको इस तरीके से मार्क कर देंगे। दिस इज डिनोटिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस ट्यूरिंग मशीन, राइट। सो ऑल कॉन्फ़िगरेशंस दे आर एज्यूम टू स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड सिंबल एंड नेवर एंड विद अ ब्लैंक अनलेस द ब्लैंक इज करेंटली स्कैन। तो जब तक ब्लैंक करेंटली स्कैन नहीं होगा हम तब तक ब्लैंक से एंड नहीं करेंगे अपनी इनपुट टेप की कॉन्फ़िगरेशन को। Let's take another example. Suppose हमारे पास Turing machine given है as left hand marker, then blank A, then the blank, then another blank, then another blank, then another blank. Then I have a finite control Q dash Qn H. It's pointing to this Q and then I read write head is pointing to this symbol. So now we can see A के बाद सारे blanks तो है but blank जो आपका currently scanned है, तो जो आपका currently last scanned blank है वहीं तक आप लिखोगे अपनी configuration में, उसके बाद हम नहीं include करेंगे। तो configuration लिखने के लिए Q हमारा currently scanned state है तो Q लिख दिया, then tape के symbol में left hand marker, then this blank, then A, then these 2 blanks, बस यहीं तक लिखेंगे, इसके बाद के ब्लैंक्स को मेंशन नहीं करेंगे। एंड दिस इज माय करेंटली स्कैन सिंबल। तो अगर आपका जो हमने अभी देखा था कि जब तक अनलेस एंड अनटिल आपका ब्लैंक करेंटली स्कैंड हो तब तक हम ब्लैंक्स को नहीं मेंशन करते। तो क्योंकि यहाँ पे मेरा ब्लैंक करेंटली स्कैन था इसीलिए हमने इसको मेंशन किया एंड इसके बाद के जो ब्लैंक्स हैं उनको हम नहीं लिखेंगे हमारी कॉन्फ़िगरेशन में। सो दिस इज वन वे टू राइट दी configuration of a Turing machine. We have another way also जिसमें हम कैसे लिखते हैं, another way for writing configuration. We first specify state कि कौन सी state में है, then we specify string to the left of currently scanned, then we specify current head position and then we specify string to the right of scanned square. एक तरीका तो वो था जो अभी हमने देखा कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, आप सबसे पहले स्पेसिफाई करो स्टेट, ये तो सेम ही है जो हमारा पहले वाले मेथड में भी था।
देन हम स्पेसिफाई करते हैं स्ट्रिंग टू द लेफ्ट ऑफ द करेंटली स्कैंड। अगर मेरे पास इनपुट टेप की कॉन्फ़िगरेशन है समथिंग लाइक दिस और मेरा करेंटली स्कैन सिंबल है बी, तो क्या स्ट्रिंग है मेरे पास टू द लेफ्ट ऑफ द करेंटली स्कैन दिस, सो नेक्स्ट दिस पार्ट विल कम, देन अ कॉमा, देन वी राइट द करंट हेड पोजिशन इज माई बी। तो हम सपोज हमारी स्टेट कोई भी हो सकती है, देन स्ट्रिंग टू द लेफ्ट ऑफ द करेंटली स्कैन ए, देन करंट हेड पोजिशन बी, देन स्ट्रिंग टू द राइट ऑफ द स्कैन स्क्वायर, राइट में हम क्या लिखेंगे, वी विल अगेन राइट एन ए। अगेन वी डोंट स्पेसिफाई ब्लैंक अनलेस blank is the part of is unless and until blank is the currently scanned symbol, otherwise we don't mention it in the configuration. So this is how we write the configuration. तो जो भी हमने 3 एग्जांपल्स देखे उनके लिए हम इस तरीके से भी कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखते हैं। सेकेंड वे से अगर हम लिखें, सबसे पहले स्टेट क्यू, देन स्ट्रिंग टू द लेफ्ट ऑफ द करेंटली स्कैंड। स्ट्रिंग टू द लेफ्ट ऑफ द करेंटली स्कैंड क्या है, सिर्फ लेफ्ट हैंड मार्कर है तो वही लिख देते हैं। देन करंट हेड पोजिशन ए, देन स्ट्रिंग टू द राइट ऑफ द करेंटली स्कैंड, जो करंट हेड पोजिशन है उसके राइट में क्या स्ट्रिंग है, ए बी ए, तो ए बी ए। सो दिस इज हाउ वील राइट द कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग द सेकेंड मेथड। देन सेकेंड वाली ट्यूरिंग मशीन के लिए करंट स्टेट एच, then string to the left of the currently scanned, left hand marker and 2 blanks, currently scanned 1 blank, string to the right of the currently scanned, that's blank and A. Then coming to the third method, state, we are in queue, then left of the currently scanned, this is my currently scanned, इसके left में क्या हमारे पास left hand marker blank A and a blank. Then currently scanned is blank, and after currently scanned we have all blanks, so we can represent that with the denoting with an E. So E is denoting that everything else is a blank, it's an empty string, so we can represent it like this, left hand marker blank A blank, these are the string which is left to the currently scanned is blank, and after currently scanned we have E, that means we have all blanks. So this is how we'll mention the third way to write the configuration. Now let's say if I am given with some configuration like this, Q blank, not blank, left hand marker BAA, A, B, C, blank. So is this the right way to write the configuration? No, this is not the right way to write the configuration because it is including blank, and blank should not be part of the configuration. Then if I write another configuration something like this, Q currently scanned, string to the left of the currently scanned is this, then I have this. So this is again not a valid way to represent the configuration because after the string जो हमारी left hand पे होती है उसके बाद हमारी read write head की position होती है, and read write head position cannot be this, it will only point to only one symbol at a time. So this is again not a valid configuration. Now we come to another definition which says that let W and U belong to some alphabet, right, where U does not end with a blank, and let A, B belong to the alphabet. So if I have some condition like this कि W and U मेरे कोई symbols हैं जो belong कर रहे हैं alphabet को, जहाँ पे U जो है आपका blank से end नहीं हो सकता, and let A be some symbols which are belonging to the alphabet, तो इसके लिए हमारे पास कुछ cases हैं. The first case says, case 1, कि अगर आपके पास कोई ट्रांजिशन है, अगर आप Q1 स्टेट पे हो और आपको सिंबल A मिलता है तो आपको क्या कर देना है, आप Q2 स्टेट पे चले जाओ और A को रिप्लेस कर दो विद अ B, राइट. इसका एग्जांपल देखते हैं. सपोज अगर हमारे पास Q1 स्टेट है और हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन है, करेंटली हम A पे हैं, तो हम क्या कर देंगे, Q1 स्टेट पे है, A पे हो आप पॉइंट कर रहे हो, तो आप क्या कर जाओगे, ट्यूरिंग मशीन की कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आप Q2 पे चले जाओगे
और आप ए को रिप्लेस कर दोगे बी से। तो ये जो हमने कॉन्फ़िगरेशन अभी पढ़ी उसी के कुछ एग्जांपल्स एंड केसेस दिखा रहे हैं कि अगर ऐसे ऐसे सिनेरियोज होते हैं तो हमें कैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। दिस इज केस 1। केस 2 सेज कि अगर ट्रांजिशन फंक्शन है, आप Q1 पे हो और आपको A मिलता है, तो आप Q2 पे चले जाओ, अब आप लेफ्ट में मूव कर जाओ। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अगर मेरे पास Q1 स्टेट है और मेरी टेप की कॉन्फ़िगरेशन है लाइक दिस, तो Q1 पे है A मिला, तो हम क्या कर जाएंगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली जो रिजल्ट है हम इस तरीके से डिनोट कर रहे हैं, ये मेरा करंट स्टेटस है, ये ट्रांजिशन अप्लाई करने से पहले, फिर हमने ये सिंबल बनाया, M लिखा, और ये ट्रांजिशन अप्लाई करने के बाद जो स्टेटस हो गया ट्यूरिंग मशीन का वो लिख देते हैं। तो स्टेट किस पे चले जाएंगे, Q2 पे, लेफ्ट में मूव कर जाएंगे तो रीड राइट हेड किसको पॉइंट करेगा, बस B को, तो B पे आ जाएगा एंड A और U एज इट इज आ जाएंगे। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज हम Q1 पे हैं और मेरा रीड राइट हेड जो टेप है उसका स्टेटस है ये, तो हम क्या कर जाएंगे, हम Q2 पे चले जाएंगे एंड रीड राइट हेड पॉइंट कर देगा बस B को। सो वन मोर करेक्शन टू बी डन है, ब्लैंक नहीं लिखेंगे अब हम इसमें, क्योंकि हमने देखा था ब्लैंक आप तभी लिखते हो जब ब्लैंक आपका करेंटली स्कैंड होता है। जब आप लेफ्ट में मूव कर जाए तो ब्लैंक तो करेंटली स्कैन नहीं है, तो इस ब्लैंक को हम यहाँ से हटा सकते हैं। केस 3 देखते हैं। केस 3 कहते हैं ट्रांजिशन फंक्शन, अगर Q1 पे हो और आपको A मिलता है तो Q2 पे चले जाओ और राइट में मूव कर जाओ। तो A देखते हैं सबसे पहले, Q1 पे हैं हम, W A B U, Q1 पे A मिला तो आप क्या कर जाओगे, राइट में मूव कर जाओगे, तो स्टेटस क्या हो जाएगा, Q2 W A B, अब रीड राइट हेड पॉइंट करेगा इस B को। एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर हम Q1 पे हैं, W A, Q1 पे A है तो रीड राइट, तो अब हम Q2 पे चले जाएंगे और पॉइंट करेगा ये, अब A के बाद तो सारे ब्लैंक्स हैं, तो जब राइट में मूव करेगा तो अब पॉइंट करेगा इस ब्लैंक को। सो दीज आर द डिफरेंट केसेस कि जब आपकी टेप की कॉन्फ़िगरेशन होती है और हमें पर्टिकुलर ट्रांजिशन फंक्शन उस पर कोई अप्लाई करना है, देन हाउ डज द कॉन्फ़िगरेशन वेरीज। कॉन्फ़िगरेशन का एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो ये कॉन्फ़िगरेशन है ट्यूरिंग मशीन की, जो भी हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में देखी थी। तो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन ही हमें ट्रांजिशन फंक्शन गिवन है, राइट। तो हमें क्वेश्चन कहता है कि दैट इफ M is started in configuration Q1 अगर हमने इस कॉन्फ़िगरेशन में स्टार्ट किया, देन ट्रेस द कंप्यूटेशन ऑफ M। अगर हमने इस कॉन्फ़िगरेशन में स्टार्ट किया है तो हमें इस ट्यूरिंग मशीन की कंप्यूटेशन को ट्रेस करना है यूजिंग दिस ट्रांजिशन फंक्शन जो हमें गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा स्टेटस है, हम Q1 स्टेट पे हैं, करेंटली ब्लैंक पे रीड राइट हेड है एंड देयर आर ऑल एस। तो देखते हैं क्या करना है हमें, Q1 पे और ब्लैंक पे है। Q1 पे अगर हमें ब्लैंक मिला तो हमें क्या करना है, Q1 पे ब्लैंक मिला तो Q0 पे चले जाओ, राइट में मूव कर जाओ। तो हम किस पे आ जाएंगे, हम Q0 पे चले गए और हम राइट में मूव कर गए, दैट मीन्स रीड राइट हेड इज पॉइंटिंग हेयर। नेक्स्ट स्टेट, अब हम Q0 पे हैं और A पे हमारा रीड राइट हेड है, Q0 पे A है, तो उस A को Q1 पे चले जाओ और A को रिप्लेस कर दो विद अ ब्लैंक। तो हम Q1 पे चले गए एंड A को रिप्लेस कर दिया हमने विद अ ब्लैंक, बाकी के तीन एज एज इट इज रहे। देन नेक्स्ट स्टेटस, Q1 पे अगर ब्लैंक है, Q1 पे अगर ब्लैंक है तो Q0 पे चले जाओ, राइट में मूव कर जाओ, Q0 पे चले गए एंड राइट में मूव कर गए, तो अब रीड राइट हेड पॉइंट कर रहा है इस वाले को। देन Q0 पे A, तो अगेन Q0 पे A, Q1 पे चले जाओ, A को रिप्लेस कर दो विद अ ब्लैंक। देन Q1 पे ब्लैंक, Q1 पे ब्लैंक, फिर से वही Q0 पे चले जाओ, राइट में मूव कर जाओ।
तो Q1 Q0 पे चले गए एंड राइट में मूव कर गए, तो ये हो जाएगा, इसको पॉइंट करेगा Q0 पे A, तो अगेन Q1 पे चलेगा, इसको रिप्लेस कर दिया ब्लैंक से, Q1 पे ब्लैंक, Q0 कर दो इसको, Q0 स्टेट पे चले जाओ और राइट में मूव कर जाओ, राइट में मूव करे तो इसे पे आ गए, देन Q0 पे A, Q1 पे चले जाओ, A को रिप्लेस कर दो विद अ ब्लैंक, Q1 पे ब्लैंक, Q0 पे चले जाओ, राइट में मूव कर जाओ, अब राइट में तो सारे ब्लैंक्स ही होंगे, तो हम एक और ब्लैंक हमने ऐड कर दिया, यहाँ पे आ गए। अब Q0 पे आपको ब्लैंक मिलता है, तो Q0 पे ब्लैंक मिलता है, तो हमें क्या कर जाना है, हमें हॉल्ट कर जाना है। So this is my last state. So how many steps I have got? I have got 1, 2, 3, 4. This is 5, this is 6, this is 7, this is 8, this is 9. So we forgot to write the last step कि जब हमें Q0 पे blank मिला तो हमारा status क्या हो गया, अब halt, and rest all remain the same. So this is my last step. So there are total 10 steps while tracing the computation for this particular Turing machine. Now let's see some abbreviations जो हम यूज़ करते हैं for the Turing machines. तो जब भी हम हेड मूविंग, हम जब भी अगर हमारी ट्यूरिंग मशीन लेफ्ट में मूव कर रही है तो उसको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं m फॉलोड बाय दिस एरो पॉइंटिंग लाइक दिस, और अगर हमारा रीड राइट हेड या हमारी ट्यूरिंग मशीन राइट में मूव करती जा रही है तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस। तो ये डिनोट कर रहा है दैट इट इज मूविंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन एंड दिस इज डिनोटिंग दैट इट्स मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। अब जैसे हमने दो फाइनाइट ऑटोमेटा को कंबाइन किया था इनटू वन, वी हैव सीन हाउ टू कंबाइन टू फाइनाइट ऑटोमेटास इनटू वन, सिमिलरली वी कैन कंबाइन ट्यूरिंग मशीन्स आल्सो। So now there are certain rules that we have to see before combining Turing machines. So rules for combining Turing machines. तो सबसे पहले अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई ट्यूरिंग मशीन है सम M1, M2, M3, ये मेरे पास 3 ट्यूरिंग मशीन्स हैं, राइट। और ट्यूरिंग मशीन अगर हमने इस तरीके से डिपिक्ट किया डायग्रामेटिकली कि M1 ट्यूरिंग मशीन यहाँ पे A मिला तो हम M2 पे चले गए और B मिला तो हम M3 पे चले गए। तो बेसिकली इस डायग्राम का यहाँ पे क्या मतलब है, तो इस डायग्राम का ये मतलब है कि M1 ट्यूरिंग मशीन जैसी एंड हुई, A सिंबल मिला M2 ट्यूरिंग मशीन स्टार्ट हो गई, B सिंबल मिला तो M3 ट्यूरिंग मशीन स्टार्ट हो गई। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, दैट कनेक्शन फ्रॉम वन मशीन टू अनदर इज नॉट परस्यूड अंटिल द फर्स्ट मशीन हॉल्ट्स, other machine is then restored from its initial state with the tape and head position as they were left by the first machine। मतलब हमने स्टार्ट किया इन द इनिशियल स्टेट ऑफ M1 की इनिशियल स्टेट पे हमने स्टार्ट किया, ऑपरेट किया एज M1 वुड ऑपरेट, जैसे M1 फंक्शन कर रही है इसको फंक्शन करते गए अंटिल M1 वुड हॉल्ट। तो तब तक कंटिन्यू करते रहे जब तक M1 खुद से हॉल्ट नहीं हो जाती। एक बार M1 हॉल्ट हो गई, M1 के हॉल्ट होने पे अगर आपका करेंटली स्कैन सिंबल A है देन इनिशिएट M2, और अगर आपका करेंटली M1 के हॉल्ट होने पे करेंटली स्कैन सिंबल B है देन इनिशिएट विद M3। तो यही हम कह रहे थे कि एक मशीन से दूसरी मशीन पे जब हम ट्रांजिशन करते हैं तो वो तब तक स्टार्ट नहीं होता जब तक एक पहली वाली आपकी हॉल्ट नहीं हो जाती और दूसरी वाली वहीं से आपकी फंक्शनिंग स्टार्ट करेगी जहां से पहली वाली ने उसको रोका था। So this is how we combine Turing machines। अब जैसे एग्जांपल्स देखते हैं, सपोज अगर मेरे पास कोई ट्यूरिंग मशीन है जिस रिटन लाइक दिस, अगर इस टाइप से मुझे गिवन है तो इस डायग्राम का बेसिकली क्या मतलब है, ये डायग्राम हमें ये बता रहा है दैट द मशीन रिप्रेजेंटेड बाय दिस डायग्राम इट मूव्स इट्स हेड राइट 1 स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, इतने पार्ट का कि हम राइट में मूव कर रहे हैं बाय 1 स्क्वायर, राइट। अब अगर राइट में मूव करने के बाद बाय 1 स्क्वायर, इफ दैट स्क्वायर कंटेन्स एन ए और अ बी और अ लेफ्ट हैंड मार्कर और अ ब्लैंक, देन फर्दर मूव बाय 1 स्क्वायर टू द राइट, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, एक स्क्वायर से राइट मूव करो, देन अगर एक स्क्वायर से राइट मूव करने के बाद अगर आपको ए मिल रहा है
या बी मिल रहा है या ब्लैंक मिल रहा है या लेफ्ट हैंड मार्कर मिल रहा है तो फिर से राइट मूव कर जाओ। तो इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो अगर आपके जो एरो है वो सारी सिंबल्स लेबल कर रहे हैं, जो भी आपके अल्फाबेट में, अगर मेरे अल्फाबेट में सपोज यही चारों सिंबल्स थे, तो सारी सिंबल्स अगर एरो के ऊपर आ गए तो हम इस एरो को भी ओमिट कर सकते हैं और हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक दिस। तो इसका क्या मतलब है, एक स्क्वायर से राइट मूव करो, देन अगर उस स्क्वायर में कुछ भी है इन चारों में से, देन फिर से राइट मूव कर जाओ। सो बेसिकली दिस कैन ऑल्सो भी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि या तो आप R goes to R, or it can be represented like this, or it can be represented like this. So any of the way we can use. This was one of the cases. Let's come to another case. Let's call it case 2. Suppose if A belongs to the alphabet is any symbol, we can eliminate multiple arrows and labels by using. Now अगर आपका A जो है वो कोई भी सिंबल है, हम ये पर्टिकुलर डिनोट नहीं कर रहे कि A जो का मतलब A ही है आपके इनपुट अल्फाबेट में, आपका कोई भी इनपुट अल्फाबेट है जिसमें बहुत सारे सिंबल्स हैं लाइक दिस। अब A आपका सपोज कोई भी सिंबल है, चाहे ये है, ये है, ये है, A है, तो इफ A बिलोंग्स टू द इनपुट अल्फाबेट इज एनी सिंबल, देन वी कैन एलिमिनेट मल्टीपल एरोज एंड लेबल्स। तो बार बार इतने सारे एरोज या लेबल्स की बजाय हम शॉर्ट हैंड वर्जन्स लिख सकते हैं, राइट। तो अगर हम इस तरीके से डिनोट कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, दिस मीन्स एनी सिंबल एक्सेप्ट ए को छोड़ के सारे सिंबल्स, उसको हम डिनोट कर सकते हैं लाइक दिस। तो अगर मैंने कोई ट्यूरिंग मशीन बनाई है लाइक दिस, अगर मैंने लिखा, तो इसका क्या मतलब है, आप राइट में मूव करते जाओ, कीप ऑन मूविंग टू द राइट। कब तक मूव करते जाओ, अंटिल यू फाइंड अ ब्लैंक, राइट। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एनीथिंग एक्सेप्ट ब्लैंक, एनीथिंग इज एक्सेप्टेबल एक्सेप्ट ब्लैंक, राइट। तो आप राइट में मूव करते जाओ जब तक आपको ब्लैंक नहीं मिल जाता, राइट। कीप ऑन मूविंग टूवर्ड्स द राइट अंटिल यू फाइंड अ ब्लैंक। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम कह रहे हैं आप राइट में मूव करते जाओ जब तक आपको कोई भी सिंबल मिलता जा रहा है एक्सेप्ट ब्लैंक, और जैसे ही आपको ब्लैंक मिल गया वैसे ही आप रुक जाओ। तो इसको हम लिख सकते हैं, दिस ट्यूरिंग मशीन स्कैन्स द टेप टू द राइट until it finds a blank। तो इस मशीन को हम शॉर्ट हैंड वर्जन इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, कीप ऑन मूविंग टू द राइट अंटिल यू फाइंड अ ब्लैंक। या फिर इसी सेम मशीन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो है राइट में मूव करते जाओ जब तक आपको ब्लैंक नहीं मिल जाए, अगर कोई और सिंबल मिल रहा है राइट में मूव करते जाओ, जैसे ही ब्लैंक मिला वैसे ही आप रुक जाओ। तो इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप राइट में मूव करते जाओ अनलेस द सिंबल इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक। If A is not equal to blank, move to the right. If it is equal to the blank, then stop. Then we come to case 3. Another way to represent any Turing machine is we have a copying machine. Copying machine हम किस तरीके से बना सकते हैं, कॉपिंग मशीन का मतलब आप राइट में मूव करो जब तक आपको ब्लैंक मिल रहा है, ब्लैंक मिला राइट में मूव करें, ब्लैंक मिला राइट में मूव करें। अगर कोई नॉन ब्लैंक सिंबल मिलता है, राइट ब्लैंक मिलता जा रहा है तो हम राइट में मूव करते जा रहे हैं। इफ यू फाइंड सम नॉन ब्लैंक, अगर नॉन ब्लैंक मिला तो आप क्या करो, आप उस सिंबल को कॉपी कर दो ऑन टू द फर्स्ट स्क्वायर विच इज इमीडिएटली टू इट्स लेफ्ट। तो अगर हम इस तरीके से किसी मशीन को डिनोट कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, scan to the right until it finds
a non-blank square, then copies the symbol in that square onto the square immediately to its left. तो हम क्या कर रहे हैं, आप राइट में मूव करो जब तक आपको ब्लैंक मिल रहा है. जैसे ही आपको कोई नॉन ब्लैंक मिला, स्कैन टू द राइट अंटिल इट फाइंड्स अ नॉन ब्लैंक. द मोमेंट इट फाइंड्स अ नॉन ब्लैंक, देन कॉपी दैट सिंबल onto the first square which is immediately to the left. This is what we mean by this machine. Coming to the last case. Now last case का में हम क्या देख रहे हैं, हम ऐसी टाइप की मशीन्स देख रहे हैं which are used to find marked और unmarked squares. क्या मतलब है इसका? सपोज इसके 4 डिफरेंट केसेस हैं. सपोज हमें इस टाइप की कोई ट्यूरिंग मशीन है. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है आप राइट में मूव करते जाओ अंटिल यू फाइंड अ ब्लैंक. राइट, तो हम राइट में तब तक मूव करते जाएंगे अगर हमें कोई भी सिंबल मिलता जा रहा है एक्सेप्ट दी ब्लैंक. ब्लैंक को छोड़ के अगर हमें कोई भी सिंबल मिलता जा रहा है तो हम राइट में मूव करते जाएंगे. द मोमेंट हमें ब्लैंक मिला तो हम रुक जाएंगे. तो क्या हम कह सकते हैं दैट दिस ट्यूरिंग मशीन keeps on moving right until it finds a blank. Until it finds a blank. तो हम इसको इस टाइप से भी डिनोट कर सकते हैं लाइक दिस. तो इसका क्या मतलब है, फाइंड दिस ट्यूरिंग मशीन फाइंड्स द फर्स्ट ब्लैंक स्क्वायर टू द राइट ऑफ द करेंटली स्कैन स्क्वायर. तो बेसिकली जब हम तब तक मूव करवाते जा रहे हैं ऐसे राइट में जब तक हमें ब्लैंक नहीं मिल जाता. तो बेसिकली हम जैसे हम क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, हम पहले ब्लैंक को यहाँ पे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. राइट, सो बेसिकली दिस सिंबल, इसको हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं. एंड दिस ऑल्सो मीन्स द सेम थिंग, दैट फाइंड्स फर्स्ट blank square to the right of currently scanned square. First blank square to the right of currently scanned square. सेकेंड केस, अगर मेरे पास ट्यूरिंग मशीन है लाइक दिस. अब हम लेफ्ट में मूव करते हैं सपोज. तो इसका क्या मतलब है, लेफ्ट में मूव करते जाओ अगर आपको कोई भी सिंबल मिल रहा है एक्सेप्ट ब्लैंक. तो कैन वी राइट इट, कीप ऑन मूविंग लेफ्ट अंटिल इट फाइंड्स अ ब्लैंक. जैसे ही ब्लैंक मिलेगा वैसे ही रुक जाएंगे अंटिल इट फाइंड्स अ ब्लैंक. राइट, इसको हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं. तो ये क्या मतलब है इसका, फाइंड्स द फर्स्ट ब्लैंक स्क्वायर टू द लेफ्ट ऑफ द करेंटली स्कैन स्क्वायर. यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं फर्स्ट blank square to the left of the currently scanned square. नेक्स्ट केस पे आते हैं. अगर हमें कोई ट्यूरिंग मशीन गिवन है लाइक दिस. राइट में मूव करते जाओ जब तक आपको ब्लैंक मिल रहा है. ब्लैंक के अलावा कुछ और मिल गया तो हम रुक जाएंगे. तो कीप ऑन मूविंग टू द राइट until it finds a non-blank. Keeps on moving right until it finds a non-blank. इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक दिस. So basically it finds the first non-blank square to the right of the currently scanned square. And the last case, अगर हम बनाते हैं लाइक दिस. तो ये क्या कर रहे हैं, कीप ऑन मूविंग टू द लेफ्ट जब तक ब्लैंक मिल रहा है. जैसे ही कोई नॉन ब्लैंक मिला तो रुक जाएंगे. तो कीप्स ऑन मूविंग टू द लेफ्ट, कीप्स ऑन मूविंग टू द लेफ्ट until it finds a non-blank. तो हम अगर इसको ऐसे डिनोट करें तो इसका क्या मतलब है, finds the first non-blank square to the left of the currently scanned square.
एक लास्ट केस और देख लेते हैं। अगर हमें ट्यूरिंग मशीन कुछ गिवन है लाइक दिस, तो इसका क्या मतलब है, आप राइट में मूव करो, अगर आपको ए मिल रहा है तो आप उसको ब्लैंक से रिप्लेस कर दो, फिर से राइट में मूव करें, ए मिला, ब्लैंक से रिप्लेस कर दिया, फिर से राइट में मूव करें, ए मिला, ब्लैंक से रिप्लेस कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं जितने भी एज हैं हमारे टेप में, और उसको किससे रिप्लेस करते जा रहे हैं, ब्लैंक से। So these are some of the notations for the Turing machines. We'll continue this further in the next video. If you like this video, then do like and share my video and subscribe my channel. Thank you.